Hello all GATE CS aspirants, I'm Amit Goyal. I welcome you all to the YouTube channel of IS Master. In the Master Concept series for GATE CS 2024, we are discussing the subject of compiler design. We have taken 12 sessions on syntax analysis, in which we first took 3 sessions on what is known as the basics of syntax analysis. Then we took almost 3 sessions on LL1 parser. Then we took 1 session on operator precedence parser. Then we took 2 sessions on LR0 parser. Then we took 1 session each on SLR1 parser, then CLR1 parser, and then LALR1 parser. This way, we have covered almost all the kinds of parsers that we have in our syllabus. This is the last session on syntax analysis in which we are covering, identifying the type of the grammar, right? So this is basically the gist of all the sessions that we have already taken on syntax analysis. All right. So let's see. So again, this is what we have seen. The way which I have said right now, I'll just show you once again. So initially we took 3 sessions on the basics of the parsers. Then we started with top-down parser. We covered, the recursive descent parser as well as the brute force parser, in the first 3 sessions itself, in which we covered the basics also. And when we talk about top-down parsers, we say that the parsers with full backtracking, we only have one, which is brute force. Without backtracking, we have 2. One is recursive descent, another is the non-recursive descent parser. So we took another 3 sessions on non-recursive descent parser, wherein in the first session we talked about first and follow, and then we took 1 session on LL1 parsing table and 1 session on LL1 parsing. Okay? Then we started with bottom-up parsers, which are also known as SR parsers, which are also known as shift-reduce parsers. We took 1 session on operator precedence parser. Then we started with LR parsers. We took 2 sessions on LR0 parser, 1 on SLR1, 1 on LR1, and 1 on CLR1. What is important is to understand is that all of the parsers can handle unambiguous grammars only. There is only one parser which can handle ambiguous grammars, which are operator precedence parser, which is operator precedence parser. And साथ ही साथ में हमने ये भी देखा कि टॉप डाउन पार्सर्स के साथ में 2 प्रॉब्लम्स और हैं, वो लेफ्ट रिकर्सिव ग्रामर्स को नहीं हैंडल कर सकते और ना ही वो नॉन डिटर्मिनिस्टिक ग्रामर्स को हैंडल कर सकते हैं. ठीक है, एम्बिगुअस ग्रामर्स तो सभी के लिए प्रॉब्लम है. सिर्फ एक ही पार्सर है जो कि मेरा ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सर है, जो इस तरह की चीजों को हैंडल कर सकता है. ठीक है, आगे बात करते हैं. अगेन हर पार्सर के अंदर हमने ये ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है. एक पार्सिंग एल्गोरिथम होगा जो कि स्टैक को देखेगा, इनपुट बफर को देखेगा, कंसल्ट करेगा पार्सिंग टेबल से और फाइनली एक एक्शन लेगा, based upon the consultancy which is given by the parsing table. Its responsibility is to implement those actions. ठीक है, is to ensure everything is going fine. All right. Now, अब गेट में जो क्वेश्चन आता है इन जनरल ग्रामर से वो यही है, इज द गिवन ग्रामर ऑपरेटर प्रेसिडेंस और नॉट, LL1 और नॉट, LR0 और नॉट, SLR1 और नॉट, LALR1 और नॉट, CLR1 और नॉट. ये सबसे मेजर क्वेश्चन है ग्रामर्स के ऊपर. और बाकी हर ग्रामर में आपसे मिसिंग एंट्रीज इन द पार्सिंग टेबल पूछ सकता है और रीचेबल कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ द स्टैक ड्यूरिंग पार्सिंग पूछ सकता है. यही 2 बेसिक काइंड ऑफ क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं गेट के एग्जाम में. ठीक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है. अगर ऑपरेटर प्रेसिडेंस की बात करें तो हमारे पास 2 रूल्स हैं. क्या रूल है? नल प्रोडक्शंस नहीं होनी चाहिए और 2 नॉन टर्मिनल्स एक साथ नहीं आने चाहिए राइट हैंड साइड ऑफ द प्रोडक्शन में. दिस इज पॉइंट नंबर 1. अगर मैं बात करूं LL1 पार्सर्स की, तो ये होते हैं मेरे प्रेडिक्टिव पार्सर्स. प्रेडिक्टिव पार्सर्स हैं मेरे सारे ये. तो प्रेडिक्टिव पार्सर के अंदर क्या हो जाता है हमारे पास में, क्योंकि ये एक इट इज अ टॉप डाउन पार्सर, इसमें लेफ्ट रिकर्शन नहीं होना चाहिए, इसके अंदर एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए, इसके अंदर नॉन डिटर्मिनिज्म नहीं होना चाहिए और साथ ही साथ में कंफ्लिक्ट नहीं होना चाहिए हमारी पार्सिंग टेबल के अंदर. और इन सभी पार्सर्स की अगर मैं बात करूं तो इन सभी के अंदर एक ही रूल है, अनएम्बिगुअस ग्रामर प्लस साथ ही साथ में इनकी पार्सिंग टेबल में कोई कंफ्लिक्ट ना आए. अगर आप ये चेक कर सकते हैं बहुत इजीली कर पाएंगे सारे क्वेश्चंस को. बट प्रॉब्लम ये है, इट माइट बी टाइप टेकिंग. तो उसके लिए फिर हमने कुछ शॉर्ट ट्रिक्स बनाए हैं जिससे कि आप बहुत इजीली सारे क्वेश्चंस को हैंडल करेंगे. वन ऑफ द थिंग्स इज टू अंडरस्टैंड द हायरार्की ऑफ ग्रामर्स. अगर हमें ग्रामर्स की हायरार्की काफी अच्छे से क्लियर हो जाती है तो हम ये सारे क्वेश्चंस को बहुत इजीली कर पाएंगे, कुछ शॉर्ट ट्रिक्स बना पाएंगे. ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हमारे सेशंस में कि LR0 is less powerful than SLR1, is less powerful than LLR1, is less powerful than CLR1, and all of them are unambiguous grammars.
एम्बिगुअस ग्रामर्स का पूरा एम्बिट बिल्कुल अलग है। ऑपरेटर प्रेसिडेंस ही ऐसा पार्सर है जो कि एम्बिगुअस ग्रामर्स को भी हैंडल करता है और अनएम्बिगुअस ग्रामर्स को भी करता है। अब एक इंपॉर्टेंट फैक्ट जो यहां से पता लग रहा है कि LL1 पार्सर इज कंप्लीटली सबज्यूम्ड बाय LALR1 पार्सर। मतलब कि यहां से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें जो पता लग रहा है वो ये है कि LL1 पार्सर, अगर कोई ग्रामर मेरी LL1 निकल आती है, इफ माई ग्रामर इज LL1 देन इट इज डेफिनेटली गोइंग टू बी CLR, then it is definitely going to be CLR1 also as well as LLR1 because it is completely subsumed by LLR1 parser। तो ये एक शॉर्ट ट्रिक का काम करेगी, क्योंकि आपको भी पता है ये चीज कि CLR1 और LLR1 कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास बहुत बड़ा कैनोनिकल कलेक्शन बनाना पड़ सकता है, जिसमें स्टेट्स बहुत ज्यादा भी हो सकते हैं, बिकॉज यू नो आप लुकहेड्स को साथ साथ लिखे हुए चल रहे हैं। तो अब उस एफर्ट को बचाने के लिए अगर आपकी ग्रामर ऑलरेडी LL1 आ गई तो आप ये LLR1 और CLR1 के चेक्स नहीं करने हैं। तो ऐसे ही कुछ और शॉर्ट ट्रिक्स हैं जो हम डिस्कस कर लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, एंड देन यू हैव इनफ नॉलेज यू नो टू सॉल्व ऑल दीज काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस। पहली बात, अगर मेरी कोई ग्रामर LR0 निकल आती है, अगर मेरी कोई ग्रामर LR0 निकल आती है तो SLR1 भी यस है, LALR1 भी यस है, CLR1 भी यस है, एज सिंपल एज दैट। क्योंकि अगेन हमें हायरार्की पता है, कोई ग्रामर अगर यहां लाई कर रही है तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। बहुत सिंपली हम ये बात बोल सकते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा, हमें आगे के एफर्ट्स और स्टेप्स जो है वो नहीं करने पड़ेंगे। अगर मैं बात करूं LL1 की, अगर की कोई ग्रामर मेरी LL1 निकल आई, जो कि मैंने पिछले स्लाइड में डिस्कस किया, सिंस इट इज कंप्लीटली सबज्यूम्ड बाय LALR1 तो ये LLR1 भी होगी और CLR1 भी होगी। ये सारी बात समझ में आनी चाहिए आपको, बिल्कुल बेसिक सी बात है। अब अगर मैं आगे बात करूं कि अगर की कोई ग्रामर LL1 भी नहीं है, अगर कि ऐसा हो जाए कि कोई ग्रामर ना तो LL1 है और ना ही वो CLR1 है, मतलब LL1 नहीं है तो इसके बाहर होगी, CLR1 नहीं है तो इसके भी बाहर होगी। अगर LL1 भी नहीं है और CLR1 भी नहीं है तो ये भी क्लियर है ना कि LALR1 भी नहीं होगी। LALR1 भी नहीं है, CLR1 भी नहीं है तो LALR1 भी नहीं होगी। कैसे कह पा रहा हूं मैं ये बात, क्योंकि LL1 भी नहीं है और CLR1 भी नहीं है, तो मतलब CLR1 के बिल्कुल बॉक्स के बाहर चली गई, तो LALR1 तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती है। इनफैक्ट मैं तो ये भी कह सकता हूं कि अगर CLR1 नहीं है तो भी LALR1 नहीं होगी, राइट। आपको ये दोनों की भी जरूरत नहीं है चेक करने की, ठीक है। ये ऐसा क्यों कर रहे हैं हम? अब अगर आपने देखा हो, अगर आपको अच्छे से याद है, अगर आपने मेरा पिछला सेशन लगाया है LLR1 पार्सर का, आपने देखा होगा LLR1 पार्सर के लिए जो कुछ हम CLR1 में करते हैं वो करना है और उसके बाद मर्जिंग करनी है। अगर आप मतलब एक स्टेप एक्स्ट्रा करना है, अगर आपको CLR1 पे ही पता लग गया कि वो नहीं है तो LLR1 की चेकिंग करने की कोई जरूरत नहीं है आपको। एफर्ट बचेगा, टाइम बचेगा, एंड टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट एज फार एज कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आर कंसर्न्ड। यू हैव टू सेव सम टाइम, ठीक है। आपके पास 65 क्वेश्चंस हैं, आपके पास सब्जेक्ट्स हैं 12 और घंटे हैं 3। उन्हीं में आपको मल्टीपल कंटेक्स्ट स्विचेस करने हैं। विद इन 3 मिनट्स आपको हर क्वेश्चन को सॉल्व करना है, लेस देन 3 मिनट्स हैं आपके पास। तो अगर आप अपने कैलकुलेटिव एफर्ट को बचा सकते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो, और यही ये जो ट्रिक्स हैं आपको वो एफर्ट बचाने में हेल्प करेंगी। ऑलराइट, आ रही है बात समझ में? आगे बात करते हैं। अगर कोई ग्रामर LL1 भी नहीं है और वो CLR1 भी नहीं है, CLR1 है, LL1 नहीं है, मतलब कि इस वाले सर्कल से बाहर है, लेकिन CLR1 है, तो LLR1 का तो एक ही तरीका है, आपको चेक करना पड़ेगा मैन्युअली, कैसे? मर्जिंग करके। लेकिन उसमें भी अब हमने ट्रिक डिस्कस की, मर्जिंग के टाइम पे SS कॉन्फ्लिक्ट चेक करने की कोई जरूरत नहीं है, SR कॉन्फ्लिक्ट चेक करने की कोई जरूरत नहीं है, वो भी हम ऑलरेडी पिछले सेशन में डिस्कस कर रहे हैं, मैं रिपीट नहीं कर रहा हूं। यू चेक दैट सेशन, यू विल गेट द आइडिया। लेकिन RR कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है और उसके लिए कंडीशन क्या है? एक से ज्यादा रिडक्शन स्टेप्स जो हैं वो एक स्टेट में होने चाहिए। जिस स्टेट्स को मर्ज कर रहे हो उन स्टेट्स के अंदर एक से ज्यादा रिडक्शन स्टेप्स होने चाहिए, एटलीस्ट 2 चाहिए, तब जाके चेक करने की जरूरत है, नहीं तो चेक भी करने की जरूरत नहीं है। बहुत सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज मैंने आपको बोली है। अब उसके बाद बात करते हैं और शॉर्ट ट्रिक क्या है? स्टॉप एज सून एज द कॉन्फ्लिक्ट इज ऑब्टेन्ड इन द कैनोनिकल कलेक्शन। जैसे ही आपको कैनोनिकल कलेक्शन कलेक्ट करते हुए, आपको बनाते हुए आपको कॉन्फ्लिक्ट मिल जाए, आप वहीं की वहीं रुक जाए, आपको आगे कोई भी कैलकुलेशन करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। आ रही है बात समझ में? सिंपल सी बात है, यू डोंट हैव टू डू एनी कैलकुलेशंस एट ऑल। सिंपल बात है। क्यों? क्योंकि आपको कॉन्फ्लिक्ट मिल गई। हमारे पास पेपर में इतना टाइम थोड़ी ना होगा, मैं बैठ करके नहीं, मेरे को तो कॉन्फ्लिक्ट मिल गई है लेकिन मैं तो टेबल बना के देखूंगा भाई, तब मुझे पक्का पता लगेगा कॉन्फ्लिक्ट है कि नहीं। क्यों भाई? टेबल भी बनाने से वही होगा जो हमें कैनोनिकल कलेक्शन में दिख रहा है। अगर वहीं पे कॉन्फ्लिक्ट दिख गया है, बात खत्म। So again, as I said, time is very important in the competitive exams like GATE, as you already know, right? All right.
आगे बढ़ते हैं। तो ठीक है, इसके दो एग्जांपल्स हम करते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग ग्रामर, हमसे पूछा जाता है इज द गिवन ग्रामर इज ऑपरेटर प्रेसिडेंस। ग्रामर हमें ये दे रखी है। अगर वैसे तो एकदम शॉर्ट ट्रिक अगर आपको बताने की कोशिश करूं तो सीधी सी बात है, आपको ये ग्रामर में एम्बिगुअस ग्रामर के अंदर एग्जांपल करा चुका, क्योंकि सिंगल स्ट्रिंग ए के लिए इसके पास दो पार्स ट्रीज हैं। तो सीधी सी बात है, एम्बिगुअस ग्रामर है। सिंस इट इज एम्बिगुअस, ये तीनों के तीनों सारे के सारे आंसर्स गलत। सिर्फ ऑपरेटर प्रेसिडेंस मुझे चेक करना है। ऑपरेटर प्रेसिडेंस ये है, क्यों? ना तो एप्सिलॉन ट्रांजिशंस है, ना तो नल प्रोडक्शंस है इसके अंदर, और ना ही इसके अंदर आपको क्या दिख रहा है, दो नॉन टर्मिनल साथ में आते हुए दिख रहे हैं। तो सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड, आई सोल्व दिस क्वेश्चन इन लेस देन 1 मिनट एंड thus I saved some 2 minutes for the tougher questions. ठीक है, this is how you will go to, so you are going to solve the questions. Use your brain, use the ideas, do not just directly manually start solving all the parsers. आ रही है बात समझ में? ठीक है, अब एक बात इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, अब अगर हम थोड़ा सा इसको और करना चाहें तो भी समझ लेते हैं। यहां तो समझ में आ गया, एम्बिग्युइटी से आप बहुत इजीली कर सकते हैं। 1 मिनट के लिए थोड़ा सा और देख लेते हैं इसको। LL1 की बात करें तो LL1 क्यों नहीं है, अगर हम पार्सिंग टेबल के कंफ्लिक्ट से भी समझ सकते हैं क्या इस बात को? बिल्कुल समझ सकते हैं। इसका फर्स्ट ये वाली जो एंट्री है कहां आएगी? इस वाली रो में, एस वाली रो में हमें ये दोनों प्रोडक्शंस को डालना है। ये कहां आएगी? फर्स्ट ऑफ ए में। फर्स्ट ऑफ ए क्या है? ए। ये कहां आएगी? फर्स्ट ऑफ ए में, जो भी क्या है, स्मॉल ए। यहां पर कंफ्लिक्ट आ गई, इसलिए ये LL1 तो है ही नहीं। बिल्कुल क्लियर हो गई हमें ये बात। अब LR0, SLR1, LLR1 और CLR1 अगर मुझे चेक करना है तो मैं कहां से शुरू करूंगा? LR0 से ही शुरू करूंगा। मुझे क्या करना पड़ेगा? कैनोनिकल कलेक्शन बनाना पड़ेगा। बनाते हैं भाई, कैनोनिकल कलेक्शन बनाएंगे। विल स्टार्ट विद S डैश इज इक्वल्स टू डॉट ऑफ S, ऑलराइट। हाँ, ऑलराइट, तो S डैश इज इक्वल्स टू डॉट ऑफ S एंड S गोज टू, S डैश कहां जाता है? डॉट ऑफ S पे जाता है। S गोज टू डॉट ऑफ A, राइट, एंड देन S also goes to dot A. This was also there, and then because of this A goes to dot A. यहां पे बात समझ में आ रही है? ऑलराइट। अच्छा, एक चीज और यहां पे मैं बोलना चाहूंगा, क्योंकि ये ग्रामर LL1 नहीं है तो ये तो पक्का हो गया ना, तो ये LALR1 है। एक मिनट, अगर ये ग्रामर LL1 नहीं है, क्या मैं ये बोल सकता हूं अगर ये ग्रामर LL1 नहीं है तो, अगर ये LL1 नहीं है तो ये ग्रामर LL1 नहीं है। हाँ, तो LLR1 हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, CLR1 हो भी सकती है, नहीं हो सकती है। लेट इट बी लाइक दिस ओनली, कोई बात नहीं, हम सॉल्व करेंगे इसे। तो लेट मी रब इट अ बिट। हाँ, तो हमारे पास में क्या मिल रहा है? S डैश गोज टू डॉट S, S गोज टू डॉट A गोज टू डॉट A, ये हमें डायरेक्टली दिया हुआ है। अब इसको देख के हमें क्या समझ रहा है? ये हमारे पास करंट सिचुएशन है। S को एक्सपैंड कर दिया डॉट A में, A को एक्सपैंड कर दिया डॉट A में। करेक्ट है, बिल्कुल सही है। अब मैं क्या करूंगा, आगे ट्रांजिशंस लिखता हूं। यहां पे क्या मिलेगा मुझे? S डैश गोज टू S डॉट, ये हो गया। ठीक है, S गोज टू S डॉट। उसके बाद आपके पास में क्या आता है? अगर आप स्मॉल a पे ट्रांजिशन लिखते हैं, स्मॉल a पे अगर मैं ट्रांजिशन लिखूं तो मुझे क्या मिलेगा? S गोज टू A डॉट एंड A गोज टू A डॉट। आपको दो रिडक्शंस एक साथ मिल रहे हैं, तो ये भी क्लैरिटी मिल गई कि LR0 ये नहीं है। LR0 ये नहीं है, ये भी बहुत अच्छे से हमें क्लैरिटी मिल रही है, क्योंकि दो हमारे पास में रिडक्शंस एक ही जगह पर हो गए हैं। ठीक है, SLR1 में बात करें, दो रिडक्शंस होते ही LR0 तो नहीं होता, ये हमें बहुत अच्छे से पता है बात। अगर मैं बात करूं SLR1 की, SLR1 में हमें क्या करना है? वो रिडक्शन देखना है हमें। तो हमें जैसे कंफ्लिक्ट मिला हम रुक गए, हमें आगे बनाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ठीक है, अब बात कर रहे हैं SLR1 की। बात करें तो SLR1 में भी अगर आप देखेंगे तो SLR1 बहुत सिंपल है। क्या है SLR1 के अंदर? आपके पास में ये जो कंफ्लिक्ट है ये है कि नहीं, इसके लिए आप क्या चेक करेंगे? फॉलो ऑफ S और फॉलो ऑफ A के अंदर आपको ये एंट्रीज करनी होंगी उसी स्टेट में। स्टेट नंबर लेट से 2 है, तो आपको फॉलो ऑफ S और फॉलो ऑफ A कैलकुलेट करना है। क्या आपको दिख रहा है? फॉलो ऑफ S, फॉलो ऑफ A इज इक्वल टू फॉलो ऑफ S विच इज नथिंग बट डॉलर। तो डॉलर के अंदर ये दोनों एंट्रीज आएंगी, इसकी वजह से कंफ्लिक्ट आ जाएगा। तो यहां से ये SLR1 भी नहीं है। बहुत इजीली हम ये बात कह सकते हैं, ये SLR1 भी नहीं होगी। ठीक है, ऑलराइट।
तो ना तो ये LR0 है, ना ये SLR1 है, ना ये LL1 है। इसी तरह से आप CLR1 भी आप चेक कर सकते हैं कि क्या ये ग्रामर CLR1 है कि नहीं है। इट विल टर्न आउट दैट इट इज नॉट इवन CLR1। अगर CLR1 नहीं होगी तो ये LALR1 भी नहीं होगी। यू कैन डायरेक्टली डू दैट। ठीक है, यू कैन डू द कैलकुलेशंस योरसेल्फ। इफ देयर आर डाउट्स यू कैन पोस्ट इन द चैट बॉक्स, in the comments in the YouTube videos, or you can also post on the Telegram group also to discuss the doubts. ठीक है, all right, so let me check one more thing. Is it written correctly? All right, it is written correctly only. All right, तो हमने ये दिखाया आपको कि LR0 ये नहीं है, बिल्कुल सही बात है। SLR1 नहीं है, बिल्कुल हमने दिखा दिया। LL1 नहीं है, वो भी हमने देख लिया। क्यों? क्योंकि फर्स्ट जो है वो मैच हो रहा है। फर्स्ट ऑफ कैपिटल ए भी स्मॉल ए है और फर्स्ट ऑफ स्मॉल ए तो पहले ही स्मॉल ए है, तो LL1 भी नहीं है। और ऑपरेटर प्रेसिडेंस ये है, ये भी हमने बोल दिया। LALR1 और CLR1 भी आप इसी तरीके से चेक करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। आप CLR1 बना के देखेंगे, आपको वहां पर कंफ्लिक्ट मिल जाएगी। जैसे ही कंफ्लिक्ट मिलेगी आपको ये क्लैरिटी आ जाती है कि सिंस देयर इज ए कंफ्लिक्ट, अगर CLR1 नहीं है तो LALR1 भी नहीं होगा। ठीक है, आप चाहते हो तो मैं थोड़ा सा कैलकुलेशन कर भी देता हूं, बाकी यू कैन डू द रेस्ट ऑफ द कैलकुलेशंस योरसेल्फ। अगर हम देखें S डैश इक्वल्स टू डॉट एस, इसी में हम थोड़ा सा इसी के अंदर हम वो डालने की कोशिश करते हैं जो फॉलोज है। ठीक है, S डैश इज इक्वल्स टू डॉट एस कॉमा डॉलर, ऐसा मैं लिख सकता हूं। AS गोज टू डॉट ए कॉमा ए है, तो अब इसमें मैं क्या लिख सकता हूं यहां पर S डैश गोज टू डॉट एस कॉमा डॉलर। अगर मैं ऐसा लिख देता हूं तो हाँ, अब मैंने इसको किसको एक्सपेंड किया, S को किया, तो S को किया तो यहां पर भी डॉलर आ जाएगा फॉलो के अंदर, फॉलो ऑफ दिस थिंग। ठीक है, सिमिलरली मैं इसको ब्लू से लिख देता हूं फॉलोज को। अब उसके बाद मैंने क्या किया, इस वाले A को एक्सपैंड किया, इसके फॉलो में भी क्या आ जाएगा डॉलर, इसके फॉलो में भी क्या आ जाएगा डॉलर। और जब मैं इसका A पे ट्रांजिशन लिख रहा हूं तो क्या आप ये समझ पा रहे हैं, S गोज टू A डॉट, कॉमा में यहां पर भी डॉलर रहेगा और कॉमा में यहां पर भी डॉलर रहेगा। सिंपल सी बात है, इसमें कोई कंफ्यूजन की चीज ही नहीं है। ठीक है, S डैश गोज टू डॉट एस डॉलर था, S गोज टू डॉट ए हो गया और साथ में डॉलर आ गया। क्यों? क्योंकि ये फॉलो में था। फिर इस A को एक्सपेंड किया, A गोज टू डॉट ए हो गया, डॉलर साथ में क्यों आया भाई, डॉलर क्यों आया, क्योंकि फॉलो में यही था तो ये भी आ गया। यहां तक तो सिंपल है, कोई कहानी में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब अगर उसके बाद मैंने S पे ट्रांजिशन लिखा तो यहां पर क्या हो जाएगा, S गोज टू एस डॉट कॉमा डॉलर। अगेन ये सारा कैलकुलेशन मैं सिर्फ क्लैरिटी के लिए कर रहा हूं, क्वेश्चन में लेस देन 1 मिनट में सॉल्व कर चुका हूं। ठीक है, देन A के ऊपर अगर ट्रांजिशन आता है तो मैं स्मॉल a के ऊपर क्या लिखूंगा, S गोज टू A डॉट कॉमा डॉलर, A गोज टू A डॉट कॉमा डॉलर। तो क्या आप ये समझ पा रहे हैं कि दो रिडक्शंस एक ही सेल में आने वाली हैं। कौन सा वाला सेल, रो नंबर विल बी I0, I1, I2 रो के अंदर, डॉलर के अंदर आप लोग ये वाली प्रोडक्शन कौन सी है, दिस इज लेट्स से प्रोडक्शन नंबर 1, दिस इज प्रोडक्शन नंबर 2, दिस इज प्रोडक्शन नंबर 3। प्रोडक्शन नंबर 2 और प्रोडक्शन नंबर 3 दैट इज R2 एंड R3 विल बी अंडर डॉलर, I2 इज द रो एंड डॉलर इज द कॉलम। तो CLR1 ये नहीं है, LALR1 तो बिल्कुल नहीं होगी। अगर CLR1 नहीं है तो बात ही खत्म हो गई। ठीक है, तो इससे भी आप टाइम बचा सकते हैं। अगर आपको एम्बिग्यूटी नहीं दिखती है तो आपको CLR1 मैंने सॉल्व नहीं, LALR1 सॉल्व करने के लिए नहीं बोला। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, आपको इजीली फैक्ट्स को अप्लाई करते चला जाना है, आप बहुत इजीली सॉल्व कर पाएंगे। आगे की बात करते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग ग्रामर। दिस इज द लास्ट एग्जांपल व्हिच वी आर डिस्कसिंग एंड दैट विल कंप्लीट आवर टॉपिक ऑफ सिंटैक्स एनालिसिस एज अ होल। कंसीडर द फॉलोइंग ग्रामर। ग्रामर दी गई है E goes to E plus T and then T goes to I is the given grammar operator precedence LL1, LR0, SLR1, LLR1, CLR1। वही सारे सवाल फिर से पूछे गए हैं। अब आपसे पहले तो मैं इस क्वेश्चन का आंसर चाहता हूं कि भाई ऑपरेटर ग्रामर है कि नहीं, ऑपरेटर प्रेसिडेंस है कि नहीं है। क्या आपको यहां पर एप्सिलॉन प्रोडक्शंस दिख रहे हैं, नल प्रोडक्शंस दिख रहे हैं, नहीं है? क्या दो जो है नॉन टर्मिनल्स एक साथ आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं? तो ऑपरेटर प्रेसिडेंस तो ये है। LL1 है कि नहीं है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मुझे साफ साफ लेफ्ट रिकर्शन दिख रहा है, LL1 नहीं है। ऑलराइट, LL1 नहीं है। ठीक है, देन LR0 की बात करें, क्या ये LR0 है कि नहीं है, SLR1 है कि नहीं है, LALR1 है कि नहीं है, CLR1 है कि नहीं है, ये हमें देखना होगा। एक सेकेंड, ऑलराइट, दिस हैज बीन सॉल्व्ड, ऑलराइट, करेक्ट। I was just looking at the options sequence, that was correct there also.
अब आपको LR0 चेक करना है, तो LL1 नहीं है ये ग्रामर, ये बहुत अच्छे से हमें क्लैरिटी है। अगर ये LL1 निकल आती तो फिर बहुत इजी हो जाता हमारे लिए ये बोलना कि LLR1 भी है, CLR1 भी है, लेकिन वो वाली शॉर्ट ट्रिक अब हम नहीं लगा सकते। अब हमें ये देखना होगा LR0 है कि नहीं। अगर ये LR0 निकल आई तो फिर ये क्लियर कट है कि SLR1 भी सही हो जाएगा, LLR1 भी और CLR1 भी। तो LR0 हम चेक करने चलते हैं। LR0 जब हमने चेक किया तो देखिए कैसे लगाएंगे, S goes to dot E, ठीक है, E goes to dot E plus T and E goes to dot T। एक्सपेंशन कर दिया आप लोगों ने। अब T का एक्सपेंशन किया, T goes to dot I। अब इसके बाद E T I तीनों के ऊपर मैं ट्रांजिशंस लिख सकता हूं। अभी तक कोई कंफ्लिक्ट का कोई स्कोप नहीं है, कोई रिड्यूस आया ही नहीं। कंफ्लिक्ट आने के लिए एक रिड्यूस तो चाहिए, या तो दो रिड्यूस हो या एक शिफ्ट रिड्यूस हो, ये बात बिल्कुल क्लियर है हमको। अब उसके बाद S goes to E dot कर दिया, साथ ही साथ में देखो E पे ये भी हो सकता है, E goes to E dot plus T। सिमिलरली यहां पे E goes to T dot आ जाएगा और यहां पर T goes to I dot आ जाएगा। ठीक है, यहां तक सही है। एक रिडक्शन है सिंगल, कोई इशू नहीं, सिंगल रिडक्शन है कोई इशू नहीं है। यहां पर लोगों को ये लग सकता है कि यहां पे रिडक्शन भी हो रहा है प्लस साथ ही साथ में रिडक्शन भी हो रहा है और साथ ही साथ में जो है एक ट्रांजिशन भी है प्लस पे, तो यहां पर कंफ्लिक्ट आ गया, ऐसा लग सकता है, क्योंकि रिडक्शन तो हर जगह जाता है और प्लस जो है वहां पर शिफ्ट ऑपरेशन है तो कंफ्लिक्ट आ गया। लेकिन नहीं, यहां पर रूल कौन सा लगेगा, यहां पर प्रॉब्लम क्या है कि यहां पर ये ऑगमेंटेड प्रोडक्शन है। ऑगमेंटेड प्रोडक्शन जहां पर रिड्यूस होती है वहां पर सिर्फ I1 और डॉलर के नीचे एक्सेप्ट आएगा और कहीं पे कुछ भी नहीं आएगा। प्लस के अंदर हम यहां पर स्टेट नंबर I4 लिख सकते हैं, S4, तो यहां पे कंफ्लिक्ट नहीं है। आ रही है बात समझ में। जनरली अगर एक रिड्यूस हो जाए और साथ ही साथ में कुछ भी शिफ्ट हो तो आपको कंफ्लिक्ट आ जाता है, लेकिन यहां पर रिड्यूस क्या हो रहा है ये भी देखना होगा, ऑगमेंटेड प्रोडक्शन। और ऑगमेंटेड प्रोडक्शन के लिए रूल ये है, जिस स्टेट में वो हो रहा है उस स्टेट के अंदर डॉलर के नीचे हम एक्सेप्ट लिख देते हैं। ये रूल हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, सिंपल है। आगे की बात करेंगे। प्लस हमने देखा तो E goes to E dot plus T आ गया। यहां पर बहुत क्लियरली दिख रहा है कि प्लस T आ चुका है। अब है प्लस आ गया, अब इसको एक्सपेंड किया, T goes to T dot I आ गया। यहां पर कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, कोई रिड्यूस रिडक्शन हो ही नहीं रहा है। I के ऊपर मैं यहां चला जाऊंगा, T के ऊपर मैं यहां चला जाऊंगा, कोई रिडक्शन है ही नहीं, सिंगल एक रिडक्शन है, आगे कोई ट्रांजिशन नहीं है। तो इस तरीके से ये LR0 तो बन जाती है ये ग्रामर। अगर LR0 है तो SLR1 भी है, LLR1 भी है, CLR1 भी है। तो इस तरीके से हम बहुत इजीली ये बोल पाते हैं कि ये जो है हमारे पास में ये भी टिक है, ये भी टिक है, ये भी टिक है, ये भी टिक है। पीछे वाले केस में क्या हो गया था, ऑपरेटर प्रेसिडेंस तो था हमारे पास में, लेकिन LL1 नहीं था क्योंकि कंफ्लिक्ट आ गया था। और सबसे पहली बात, ग्रामर क्या थी मेरी, एम्बिगुअस। एम्बिगुअस ग्रामर तो कुछ भी नहीं हो सकती एक्सेप्ट ऑपरेटर प्रेसिडेंस। डायरेक्टली भी हमने सॉल्व कर दिया था, सिंपल है। ऑलराइट, so that's all about this session, guys. In this session, what did we saw? First of all, we saw, the summary of all the kind of parsers we have seen some top-down parsers, we have seen some bottom-up parsers. In top-down parsers, we have seen the parsers with backtracking, that is the brute force approach. We have seen the parsers without backtracking, that is the, the recursive descent parser and the non-recursive descent parser. In the bottom-up parsers, we have seen, the two kinds of parsers. One is operator precedence and other is the LR0 parsers. LR parsers. In the LR parsers, we have seen LR0 parser, SLR1 parser, LLR1 parser, and CLR1 parser. We have seen all this. That was the summary. And after that, we saw that the most important kind of question is to ask what kind of grammar it is. And for doing that, you might be requiring a lot of work to do. We gave some short tricks through which you can solve the questions faster. For example, one of the short tricks is if the grammar turns out to be LR0, it will also be SLR1, LLR1, and as well as CLR1. This is one of the short tricks. Then other short tricks are, if the grammar turns out to be LL1, then it becomes LLR1 as well as CLR1. This is also another short trick, right? And if the grammar turns out that it is not CLR1, and then we can simply say it is not also LLR1. So these are few of the short tricks. Another short trick can be you stop as soon as you achieve a conflict, right? You don't need to draw everything again. Don't need to construct even the parsing table also. All right, use these short tricks. You'll be able to solve these questions faster. Do more and more practice. If you have doubts, please type in the comments, right? Okay, so all right, guys, I will see you in the next session with some details on semantic action. We have completed the syntax analysis phase. Here are the details of the next 5 sessions. Thank you so much, guys. We'll start with semantic analysis in the next session.